گلبرگہ کرناٹک کے شمال مشرق میں واقع ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ بنگلور سے 613 کلومیٹر اور حیدرآباد سے 214 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر کرناٹک کے پٹھار پر آباد ہے اور اس کی آبادی 5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ دکن کے مشہور و معروف بادشاہ بہمن شاہ نے گلبرگہ کو 1347 عیسوی میں اپنا دارالسلطنت بنایا۔ شہر کو انہوں نے سجایا اور سنوارا اور بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے اس کا انتظام و انصرام کیا۔ بادشاہ بہمن شاہ نے یہاں کئی دل خوش کن عمارتوں کی تعمیر کرائی۔ اس وقت کے بہترین معمار اور صناع سے مسجدیں بنوائیں، خوبصورت محلات کی تعمیر کی گئی جس میں عیش و آرام کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ یہ شہر کنڑ، مراٹھی اور حیدرآبادی کلچر کا ملا جلا روپ ہے۔ گلبرگہ نے ہندو مسلم ہم آہنگی کو بڑے قرینے سے اپنے سینے میں سجو کر رکھا ہے، کیونکہ کبھی تو یہ بیجاپور سلطنت کے تحت رہا، کبھی مغلیہ سلطنت اور کبھی حیدرآباد کے نظام کے تحت، اور بالآخر 1973 میں یہ کرناٹک کا حصہ بن گیا۔ گلبرگہ کی 2 عمارتیں قابل دید ہیں۔ پہلا ہے گلبرگہ کا قلعہ، جسے گل چند نے بنوایا اور اس کو علاؤ الدین بہمنی نے اور مضبوط کیا۔ اس عظیم الشان عمارت میں 15 ٹاور اور 26 گنبد ہیں۔ قلعے کے اندر ایک جامع مسجد ہے جس کو اسپین کے کارڈوبا اسٹائل میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ قلعے کے جنوب میں شاہی مقبرے بنے ہوئے ہیں۔ دوسری اہم عمارت درگاہ بندہ نواز گیسو دراز ہے۔ یہاں ہر سال عرس منعقد کیا جاتا ہے اور لاکھوں ہندو مسلم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ درگاہ کی لائبریری میں تقریباً 10,000 نایاب کتابیں محفوظ ہیں۔ قینچی مسجد گلبرگہ کی تاریخی مساجد میں سے ایک ہے۔ قینچی نما دکھنے کی وجہ سے اس مسجد کو قینچی مسجد کہتے ہیں۔ بہمنی کے دور کی مسجد ہے۔ اس مسجد کو قینچی مسجد کہا جاتا ہے۔ ایسا سلوف ہے، ایسے ماڈل میں، ایسا قینچی ہے نا، قینچی کے ماڈل میں ہے۔ میرے بچپن سے دیکھ رہا ہوں میں۔ اس مسجد کو فیروز شاہ بہمنی نے بنوایا تھا۔ اس کے تاریخی پہلو کو دیکھتے ہوئے ASI نے اسے اپنی دیکھ ریکھ میں رکھا ہوا ہے۔ کئی سالوں تک یہ مسجد ویران رہی، لیکن اب وہاں باضابطہ نماز ادا کی جاتی ہے اور رکھ رکھاؤ ایک علاقائی کمیٹی کرتی ہے۔ ہمارے انڈر میں 20 سال سے آنے کے بعد میں ہم نے اس کو گیٹ بٹھائے، کلر کرے، پینٹنگ کرے، اسی طرح ہم لوگ نے کمیٹی والے لے کے اس مسجد کو چل رہے ہیں۔ مسجد کے شمال مشرق میں کئی مقبرے ملتے ہیں جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسجد کے اوپر سے آبادی کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسجد کے چھت کے پچھلے حصے پر وہ جگہ ہے جس کے نیچے محراب ہے۔ ایک چھوٹی سی گنبد اور اس کے 4 جانب چھوٹے چھوٹے مینار بنے ہوئے ہیں۔ گنبد اور مینار کے نیچے
कई खिड़की नुमा कमानें हैं। मस्जिद के ठीक पीछे सफेद रंग की जो इमारत है वो किसी सूफी का मजार है। मस्जिद के अगले हिस्से में 3 कमानें हैं जो साइज में बिल्कुल बराबर हैं। बीच की कमान बाबुद दाखला की तरह इस्तेमाल की जाती है। मस्जिद का बाज़ाब्ता कोई सहन नहीं है, अलबत्ता दाखली दरवाजे से पहले जगह छोड़ दी गई है और उसे ही सहन कहा जा सकता है। मस्जिद की बाउंड्री में दाखिल होने के लिए जुनूब में एक गेट है। मकामी लोगों की मदद से यहां पानी की सप्लाई फराहम की गई है और एक वजू खाना भी बनवाया गया है। मस्जिद के शुमाल में मस्जिद से मुत्तसिल ही एक दूसरी इमारत है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ मुसाफिरों के लिए ठहरने का इंतजाम हुआ करता होगा और लंगर का एहतमाम किया जाता था, जहाँ लोगों के खाने पीने का इंतजाम मुफ्त में होता था। ये मस्जिद के उधर बाजू में एक बौड़ी है सब, वो लंगर बोल को कहा जाता था। पहले के लोग जो है ना लंगर बोल के जो है ना मुसाफिर लोग आते थे, खाना वगैरह पका कर खा कर चले जाते थे। मस्जिद का मेहराब काफी वसी व आरीज है। मस्जिद की पूरी दीवार पर तो सब्ज रंग की पुताई है, लेकिन मेहराब के अंदर गहरे हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसे मौजूदा जमाने का इजाफा भी कहा जा सकता है। दीवारों पर की गई नक्श निगारी काफी दिलकश है। मेहराब की दाईं जानिब मिंबर है जिस पर एक लाल खूबसूरत सी चादर ढक दी गई है। मस्जिद के सामने और दीवारों पर कई कमानें हैं। इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से से ही मस्जिद के ऊपर जाने के लिए जीने बनाए गए हैं। ये मस्जिद भी दीगर बहमनी इमारतों की तरह काफी ऊंचाई पर बनी हुई है। प्रेयर हाउस काफी कुशादा है। इसके अंदर तकरीबन 350 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और बाहर के अहाते में तो हजारों लोगों की गुंजाइश है। फन्ने तामीर के नुक्ते निगाह से इस पर लोकल हिंदू फन्ने तामीर का असर दिखाई देता है। यही वजह है कि गुंबद की जगह मस्जिद के सर पर कैंची नुमा ताज या यूं कहिए कि उल्टी कश्ती की तामीर बहुत बड़ी देखने को मिलती है। मस्जिद के 4 कोनों पर छोटी छोटी मीनारें हैं। उन 4 मीनारों के अलावा मस्जिद ठीक आगे और पीछे एक गुंबद और उसको घेरती हुई 4 छोटी छोटी मीनारें हैं। मशरिक के अगले हिस्से में शुमाल से मशरिक की जानिब तकरीबन 20 बुर्जियां हैं। इसे गुलबर्गा की पुरानी मस्जिदों में से एक कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी इमारत इतनी पुरानी है कि इस पर ना तो मीनारों का आलीशान तस्वुर देखने को मिलता है और ना ही गुंबद का तस्वुर। मस्जिद में खत्ताती के नायाब नमूने देखने को मिलते हैं। सब्ज रंग की दीवार पर चांदी के रंग से कुरान की आयतें और अहादीस लिखी गई हैं। खत्ताती के नमूनों के ऊपर और नीचे बेल बूटों की जालियों के डिजाइन बने हुए हैं। खत्ताती का ज़ौक़
बहुत नुमायां तौर पर देखने को मिलता है। इस कदर खत्ताती के जा बजा नमूने खाल खाल ही देखने को मिलते हैं। फन खत्ताती के सारे नमूने यहाँ बहुत खूबसूरत नक्शो निगार के साथ इस करीने से सजा दिए गए हैं कि बस देखते ही बनता है। अब से 500 साल कबल बनी इस मस्जिद में खत्ताती के नमूने बड़ी मिकदार में ज़ाये हो चुके हैं। फर्श काले पत्थर का बना हुआ है जो गज से आपस में जोड़े गए हैं। फर्श की सख्ती और उसका खुरदरा होना उस वक्त के मेमारों और हुक्मरानों की सख्ती और आराम व आशाइश की जगह उलुल अज़मी और आहनी किरदार को पेश करता है। मस्जिद में मुख्तलिफ किस्म की कमानें बनी हुई हैं। कमानों के बॉर्डर पर खत्ताती के नमूने बने हुए हैं। दोहरी कमान यहाँ की खुसूसियत है, यानी एक कमान के ऊपर दूसरी कमान बनी हुई है। कमान के दोनों तरफ ऊपरी हिस्से में प्लेट नुमा पैच लगे हुए हैं, जबकि कमान के निचले हिस्से में दोनों जानिब ताक बने हुए हैं जो रोशनदान के तौर पर रात में इस्तेमाल किए जाते थे। ये मस्जिद इस तर्ज पर बनाई गई है कि जैसे कोई हवा महल हो।